Good morning, church. We welcome you all to the Sunday morning service. Reading from Ephesians 5:19, it says, "Let us all sing to one another psalms, songs, hymns of praise, and let us all thank the Lord for all the things He has done." Let's sing this song. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name and thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name and thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. We worship your name, O Lord, Lord Jesus. Thank you, Lord. आइए परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर, हम आपके पास क्या लेके आ सकते हैं? सिर्फ हमारे शब्द जो आपको धन्यवाद कर सकते हैं, और हमारा हृदय परमेश्वर आपके पास है। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं, लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया, शुक्रिया।
शुक्रिया तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। मेरी सुबह तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर सारी आशीषों के लिए, हमारे कलीसिया में, हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में। परमेश्वर शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा। यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस आराधना के लिए, आपके नाम में आमीन आमीन आमीन। Good morning, church. सुप्रभात कलीसिया, Welcome to Sunday morning service. रविवार की सभा में आपका स्वागत है। Thanks for joining us today. हमारे साथ इकट्ठा होने के लिए धन्यवाद। If you haven't subscribed our YouTube channel, you can subscribe this YouTube channel through clicking the button below. और यदि आपने हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिया गया है उसे दबाकर। And also there's a bell icon, click that.
और वहाँ पर जो बेल आइकन दिया है उसे भी आप दबा सकते हैं। So you'll be always notified on our videos and any event that we do. और जो कोई भी हमारा जो वीडियोस होगा, कुछ होगी सभा, उसके बारे में आपको पता चलता रहेगा। We just want to stay connected with you all. और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहिए। During the week, we are having Bible colleges on. और हफ्ते भर में हमारा जो बाइबल कॉलेज है वो जारी है। So Monday and Tuesday will be the classes. और मंगलवार और सोमवार और मंगलवार हमारी क्लासेस होती हैं। And rest of the day we have our devotions happening. और बाकी दिनों में हमारा डिवोशंस होता है। And in the weekend on Saturday we have men's and ladies time. और शनिवार को किस समय हमारा मनुष्य पुरुषों का और स्त्रियों का समय होता है। So we do everything to keep you all connected. और ये सब होता है कि ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। We also recommend if anybody has any prayer request, you can call our pastors or write to us. You will find our numbers and the email IDs below. और यदि आपकी कोई प्रार्थना या विनंती है तो आप हमारे पास्टर्स को कॉल कर सकते हैं, या जो नीचे नंबर दिया गया है उधर आप बता सकते हैं अपनी We will प्रार्थनाओं pray को। for you. हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Okay, now let's hear Pastor Binu और अब हम पास्टर बीनू को सुनेंगे on a great message. एक अद्भुत संदेश, Let's pray for the message. और प्रार्थना करेंगे संदेश के लिए। Lord, we thank you for this day. प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, We thank you for each and everybody who is watching us right now. और हर एक व्यक्ति जो इस सभा को देख रहा है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। All the brothers and sisters who are wishing to hear from you, Lord. और हर कोई भाई बहन जो आपसे सुनने की इच्छा रखते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, speak to our hearts personally today. और हमारे हृदय से आप व्यक्तिगत तौर से बातचीत कीजिए। As Pastor Binu shares, जैसे पास्टर बीनू हमसे शेयर करेंगे, you speak within our hearts, Father. तो आप हमारे हृदयों से बातें कीजिए। Thank you so much, Lord. धन्यवाद प्रभु। Anoint our ears. हमारे कानों को अभिषेक कीजिए। Bless this time, Father. इस समय को आप आशीषित कीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। Thank you. धन्यवाद। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। वही तो राह है, सच है, वही तो जीवन है। वही तो राह है, सच है, वही तो जीवन है। और उसने रूह जो भेजी है, साथ हर दम है। और उसने रूह जो भेजी है, साथ हर दम है। वो सदा साथ चलेगा, उसका वादा है चलेगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो।
पहले उसकी बादशाहत, उसकी राह चुनो। तुमको दुनिया की हर एक चीज वो देगा सुनो। तुमको दुनिया की हर एक चीज वो देगा सुनो। वो जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा। वो जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। Okay, good morning. सुप्रभात। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you for this beautiful time. पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। You are with us. आप हमारे साथ हो Wherever we are, Lord, your presence is guaranteed. और हम जहाँ कहीं भी हैं, आपकी समक्षता हमारे साथ है। Lord, minister to our hearts. हमारे हृदयों को प्रोत्साहित कीजिए। You never change us. और आप कभी नहीं बदलते। Your word never changes. आपका वचन कभी नहीं बदलता। Lord, the people, Lord, the world around us is changing. दुनिया जो हमारे बाजू में है वो बदल रही है, But Lord, you never change us. लेकिन आप कभी नहीं बदलते। Minister to our hearts. हमारे हृदयों को प्रोत्साहित कीजिए। Anoint us, Lord. हमें अभिषेक कीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। Okay, so great to be here. और बहुत अच्छा लग रहा है And thank you for joining us. और धन्यवाद करते हैं हमसे जुड़ने के लिए। And we are so thankful for your participation. और आपके जो सहभागिता है उसके लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते And हैं। so thankful for the offerings which we are receiving. और जो भेंट हमें मिल रही है उसके लिए बहुत धन्यवाद। And we are so grateful for that. और हम आपके बहुत आभारी हैं। And this is a difficult time. और ये कठिन समय है And I just wanted to encourage. और मैं आपको प्रोत्साहित करना Many चाहता of, हूँ। like all of us are affected by this. और हम सब इसकी वजह से प्रभावित हो चुके हैं। But if you are able to give, please give. लेकिन अगर आप भेंट दे सकते हैं तो जरूर दीजिए। There are many needy people. और बहुत सारे जरूरतमंद लोग हैं And as a church, we are helping them. और एक कलीसिया के नाते हम उनको मदद कर रहे हैं। And give them money or buying things for them. पैसे से या फिर उनको कोई जरूरत की So चीजें we उनको need खरीद करके। we need help. और हमें जरूरत है मदद। So if you are able, please just to online transfer those money. अगर आप कर सकते हैं तो ऑनलाइन पैसों को ट्रांसफर कीजिए। Okay, so and today I just want to talk about from the Bible. और मैं बाइबल से कुछ विषय बोलूंगा। As today, like as we are hearing this news in India, और आज जैसे हम भारत में ये समाचार सुन रहे हैं people are going back to their own home. और लोग अपने अपने घरों में वापस जा रहे हैं। And we have this new phrase, migrant workers are going back home. और हम वापस सुन रहे हैं कि जो काम करने वाले मजदूर जो दूर थे वो वापस जा रहे हैं। Like heartbreaking stories. और दिल को दहलाने वाली कहानियां हैं। People are like walking लोग चल के जा रहे हैं and 500 thousands of kilometers 500 से हजारों किलोमीटर तक going by the truck. ट्रक से। It's a heartbreaking stories. और बहुत कठिन बहुत ही दुखित कहानियां। But when you ask these people, लेकिन अगर आप इन लोगों को पूछो why you're doing suffering, why you're taking all this suffering to go, और इतनी परेशानी क्यों उठा रहे हो जाने के लिए, they says that we want to go back home. क्योंकि वो कहेंगे कि क्योंकि हम घर जाना चाहते हैं। In our home everything is okay. हमारे घर में सारी चीजें ठीक ठाक I have है। a home. मेरा एक घर है I have a field there. और मेरी खेती है We can stay there. और हम वहाँ रह सकते हैं। Why should we stay here? हमें यहाँ पे रहने की क्या जरूरत है। I think like that phrase captivated me. और वो जो वाक्य है मुझे जैसे जकड़ लिया I उसने। shared recently in a Bible study. हाल ही मैंने बाइबल स्टडी में इसके बारे में कहा Like we are going back home. कि हम घर वापस जा रहे Like हैं। that's a picture. और ये चित्रण है Like going back home.
घर वापस जाने का, as believers, like a spiritual reality. एक आत्मिक विश्वासी की जो सच्चाई है We are going back home. कि हम घर वापस जा By रहे हैं। sharing this message, I'm not encouraging you to go literally to your home. ये संदेश बताकर मैं ये नहीं उत्साहित करना चाहता आपको कि आप अपने अपने घर वापस जाएं। I'm not just taking an example मैं सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे and to इसको ले रहा हूँ talk some principle from the Bible. और बाइबल से कुछ सिद्धांतों को मैं कहना चाहूंगा। We are bound on a trip to our home, और हम ऐसे सफर में जुड़ गए हैं जो हमें घर लेके जा रहा है, and this is an amazing journey, और ये एक अद्भुत सफर है, and there is sufferings. और यहाँ पे परेशानियां हैं There are like a disappointments, और निराशाएं भी है, but one thing is sure: लेकिन एक चीज ठोस I have a home. मेरा एक घर है It is there. और वो यहाँ पर है, In that house, everything is okay. और उस घर में सारी चीजें ठीक ठाक है। And recently we heard this news about Dr. Ravi Zachariah. और हाल ही में हमने रवि जकराया की जो समाचार सुना, I was so shocked to hear that. और मैं बहुत ही जैसे स्तब्ध हो गया इसको सुन के। Last Sunday we shared about him, पिछले इतवार को हमने उनके बारे में बातें की, but he passed away last Tuesday, और पिछले मंगलवार को ही वो गुजर गए, and he is in the presence of the Lord. वो आज परमेश्वर की समक्षता में है। What a man of God अद्भुत परमेश्वर के दास, who stayed true to the call of God. और जो अपने बुलाहट में बहुत ही सच्चे बने रहे। He reached home, वो घर पहुंच गए, and we are also going to be reached there. और हम भी वहां पे पहुंचेंगे। And I was reading in Numbers chapter 33, और गिनती 33 में मैं पढ़ रहा था, and this is a unique chapter. और ये एक अद्भुत अध्याय है। When you see this chapter, अगर इस अध्याय को अगर आप देखें, it's only the place's name, सिर्फ जगहों के नाम लिखे हैं, but there is an intention behind this, jotting down all these names of these places. लेकिन इन जगहों के नाम लिखने के पीछे कुछ तो उद्देश्य है। These are the places ये वही जगह है where the children of Israel passed through. जहाँ से इजराइल की जो बच्चे थे वहां से गुजरे। It's an amazing story. और ये अद्भुत कहानी है। God commanded Moses, और परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी, put all these places in your record. और इन सारे जगहों के नाम अपने खाते में जरूर लिख लेना। It is impossible to read this chapter और कठिन होता है इन अध्यायों को पढ़ना, without deeply moved by the tender love and the care of our Almighty God. और हम हमारे जो कोमल और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जो वो संभालना है उससे हम जैसे हिल जाते हैं। There is a journey. ये एक सफर है। It started from the Egypt, और जो मिस्र से शुरू हुई, and right now they are on the banks of the Jordan River. और इस वक्त वो यर्दन के नदी के पास है। 40 years. 40 साल। 40 years of journey. 40 साल का सफर। Started from the land of darkness and death. और जो जगह थी जहाँ से अंधकार था और मृत्यु थी, वहां से शुरू किया। Now they are standing at the banks of the river Jordan, looking to the promised land. अभी वो यर्दन के किनारे पे खड़े होके वायदे के देश को देख रहे हैं। Standing is coming out from the land of slavery. और उस बंधुआई के सेवकाई की जगह से निकल कर आए हैं। Now standing on the shores of that Jordan River, और वो यर्दन की नदी के किनारे पे अभी खड़े हैं। looking at that land which is promised by God, which is a land flowing with milk and honey. उसी देश के किनारे पे खड़े हैं जो परमेश्वर ने उन्हें वायदा किया था कि ऐसी जगह जहाँ से दाख मधु और दूध बहता है। He knows my walking. वो मेरा चलना जानता है। He knows all my wanderings. और मेरे भटकने को भी वो जानता है। We are on a journey. और हम एक सफर में हैं। Maybe you are also on a journey. शायद आप भी इस सफर में हैं। But God says that I know every place you are passing through. लेकिन परमेश्वर कहता है उस हर एक जगह को मैं जानता हूँ जहाँ से तुम गुजरे हो। He went before them. और वो उनके सामने गया। He traveled every stage of those people who traveled.
और उस हर स्तर से वो गुजरा जहाँ से वो लोग गुजरे, In all their afflictions, he was also afflicted. और उनके सारे परेशानियों में वो भी परेशान हुआ। There was like a lack of water. और पानी की कमी थी, There was like a serpent came. और सांप आए, There was an issue about the food. और खाने की तकलीफ, There was an issue about the same food. और वही खाने के बारे में भी तकलीफ। In all this journey, और उन सारे सफर में people failed, लोग गिर गए, but God never failed. लेकिन परमेश्वर ने हार नहीं मानी। He made the promise उन्होंने परमेश्वर ने वायदा किया था 40 years before he took them out of that land. जब उन्हें उस जगह से निकालते वक्त 40 साल पहले जो किया था, But now after 40 years, लेकिन अब 40 साल के बाद he's standing like a God is like telling the people, now go, अब परमेश्वर उन लोगों को कह रहा है वहां पे खड़े होके कि अभी जाओ, possess the land. उस जमीन को कब्जे में कर लो। Chapter 34 talks about the boundaries God has given in the land of promise. और गिनती 34 में लिखता है कि वो सीमाएं परमेश्वर ने दी है कि जो उस देश की है God सीमाएं। has given the boundaries, और परमेश्वर ने कुछ सीमाएं भी दी है, north, south, west, east. उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। God has given, go. और परमेश्वर कहता है जाओ। This is our life today. और ये हमारा जीवन है आज। We are on our journey. हम एक सफर में हैं। There are issues. हाँ, परेशानियां हैं There are difficulties, और तकलीफें भी हैं disappointments. और निराशाएं हैं। I want to say one thing. लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, God says, परमेश्वर कहता I है know every place you passing through. मैं हर एक जगह को जानता हूँ जहाँ से तुम गुजरे हो। So when I read Numbers 33, जब मैं गिनती 34 जब पढ़ता हूँ, I say, oh, what is this name of all these places? मैं कहता हूँ ये सारे नाम जगहों के क्यों ऐसे, Like Etham, Pihahiroth, Saphon. What this name means? एदोम है, किराइयोम और इसोम, ऐसे अलग अलग नाम है Like these are tough names. और बहुत ही कठिन शब्द है। Like why I should read this? और मुझे क्यों पढ़ना है इन नामों को? But yeah, it's a significance. लेकिन इसका कुछ तो प्रभाव है, Because those उद्देश्य है। people who passed through that, क्योंकि लोग इन सीमाओं से गुजरे। and a Jewish like a person read that, जब यहूदी व्यक्ति इसे पढ़ता है they say that our fathers went through this. कि हमारे पिता इसमें से इन जगहों से गुजरे। Then maybe the places which you going through, maybe for another person is not so significant. जो जगह से आप गुजरे हो शायद दूसरे व्यक्ति के लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है, For you, it's significant. लेकिन आपके लिए वो महत्वपूर्ण है। God says, परमेश्वर कहता है I am with that in that journey. मैं उस सफर में हूँ। Like as we are on a journey जैसे हम भी सफर में हैं towards home. हमारे घर की तरफ। That's an amazing thought. ये एक अद्भुत विचार है। God is with us. परमेश्वर हमारे साथ है, He never changes. वो कभी नहीं बदलता, His word never changes. उसका वचन नहीं बदलता। It doesn't depend on me. और ये मुझ पर निर्भर नहीं करता, It depends on Him about who called us. और जिसने हमें बुलाया है वो उसी पर निर्भर करता है। Like Ravi Zachariah's life was an amazing. रवि ज़करिया की जो जीवन था बहुत ही अद्भुत था, Glorify God. परमेश्वर की महिमा से भरा। Right? Like he was an Indian born, और भारत में उनका जन्म हुआ well-educated family. और बहुत ही पढ़ी लिखी ऐसे His परिवार father से। was like a very high post, like in the like Indian government. और भारत की सरकार में उनके पिताजी बहुत ही अच्छे पद पर थे। He was with like his father was with his chief prime ministers, और उनके पिताजी जैसे जो प्रधानमंत्री थे उनको जानते थे। right? And he was with the like many chief guests comes, they were like inside that company. और कोई चीफ गेस्ट आता था तो उनके साथ वो रहते थे। That what a privilege. और कितनी बड़ी बात। But no, लेकिन नहीं, at the age of 17, जब 17 साल के थे, disappointed by the life, इस जीवन से निराश होकर his father said, "You will bring shame to our family." जब उनके पिताजी ने कहा कि तुम हमारे परिवार में कुछ बुरा ही लाओगे, You will never bring any honor. You will bring only shame to my family. कभी आदर नहीं लाओगे मेरे परिवार के लिए, तुम अनादर का ही कारण ठहरोगे। You know that the culture in India is a shame. और हमारे भारत की संस्कृति जैसे शर्मिंदगी की It's संस्कृति है, all shame oriented. और वो शर्मिंदगी के ऊपर ज्यादा केंद्रित होती है Disappointed by life. और इस दुनिया से निराश। Like he into the college or he drank some like chemical or poison.
और कॉलेज में जाके उन्होंने कुछ ऐसा जहरीली चीज पी ली And the teacher found and put them in the hospital, and he was saved. और उनके शिक्षक को पता चला और उन्हें हॉस्पिटल लेके गए और वहां पे वो बचाए गए, Would have been died, मर जाते थे, but in that hospital, लेकिन उस अस्पताल में he believed Jesus Christ. उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, He heard about the gospel. उन्होंने सुसमाचार वहां पे सुना। We are on a journey. हम एक सफर में हैं, We are not our own. हम हमारे खुद के लिए नहीं। I want to say 3 things in this journey. और इस सफर में 3 चीजों के बारे में बातें करूंगा। Like in the people of Israel came out of Egypt. और इजराइल के लोग मिस्र देश से बाहर आए They wanted these things. और इन चीजों को वो चाहते थे। One, पहली चीज it is the food. वो था खाना। I need food. मुझे खाने की जरूरत है Without food, a journey cannot go forward. और खाने के बगैर मैं इस सफर में आगे कैसे You बढ़ूं? will faint. हम तो बेहोश हो You जाएंगे, will not have any strength. हमारे पास कुछ सामर्थ्य नहीं है। God has given those people, in the people of Israel, the food. और परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को वो खाना दिया They had given the manna. He has given manna. और उनको वो मन्ना दिया, Unique food. बहुत ही अद्भुत खाना। Any other nation surrounding them had tasted that type of food. और कोई देश जो उनसे वो घिरे थे उन्होंने इस खाने को चखा नहीं था। You know, God says, परमेश्वर पता है क्या कहता है, Deuteronomy 8, और व्यवस्था विवरण 8 में, man shall not live by bread alone, कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं but जिएगा by every word which proceeds from his mouth. लेकिन उसके मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जिएगा। In this journey, friend, you and I need this food. और इस सफर में मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, हमें इस खाने की जरूरत है। Amos chapter 7, the prophet Amos is saying, एमोस 7 में एमोस जो नबी है वो कहता है, behold, I am sending a famine, देखो मैं एक अकाल को भेजता हूँ, not the famine of bread और वो रोटी का अकाल नहीं है or water, या पानी का अकाल but नहीं, the famine of the word of God. लेकिन अकाल जो परमेश्वर के वचन का है। We are a privileged people. और हम बहुत ही खुशकिस्मत लोग हैं, Look, we have Bible. हमारे पास बाइबल है। I was here reading one story like from brother Andrew. ब्रदर एंड्रू से मैं एक कहानी को पढ़ रहा I था, was reading his life story. उनके जीवन की कहानी। It was an exciting story, वो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली adventurous story. और बहुत ही धाड़सी साहसिक He कथा। was coming from Holland. और हॉलैंड से थे, This Dutch man, like he was unbeliever, he was in the military, और डच व्यक्ति और मिलिट्री में उन्होंने काम किया, and but then the providential circumstances he became a believer, और ऐसे हालातों में ऐसे हो गए कि वो विश्वासी बने, and then God used him, परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया and he started to find like what God wants to do through him. और वो कोशिश की उन्होंने ढूंढने की कि परमेश्वर क्या चाहते हैं कि वो करे। He was afraid, वो डरते थे, but he was reluctantly started to do things. लेकिन जैसे पसंद नहीं था फिर भी उन्होंने चीजें करनी शुरू की, Like we all do like that, और हम भी ऐसे ही करते थे। right? Like somebody says, share something, और कोई आपको कहता है कि कुछ बाइबल से कहिए, right? Like we are scared, और हम डर जाते हैं, but then by spirit, like we start, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा हम शुरू करते हैं and then we find, okay, I am edified, और हमें पता चलता है कि मैं प्रोत्साहित हो रहा हूँ and the people are edified. और लोग प्रोत्साहित हो रहे हैं, Because this is the work of the Holy Spirit. क्योंकि ये पवित्र आत्मा का काम है, It's not man's work. ये मनुष्य का काम So नहीं है। he used to go different, like communist countries in Europe और वो अलग अलग ऐसे साम्यवादी देशों में जाते थे, and Yugoslavia युगोस्लाविया, and Romania. रोमेनिया, So he went to one church और एक कलीसिया में जब वो गए and he saw like lots of people are gathered. और उन्होंने देखा कि बहुत लोग इकट्ठा हुए हैं Everybody is holding their hymn book like this, very far. और अपने अपने गानों की किताब ऐसे दूर ऐसे पकड़ी है उन्होंने। He thought these people had some eye issue. उनको पहले लगा कि उनके आंखों में कुछ तकलीफ है, इसकी वजह से ऐसा है, Then later he found लेकिन बाद में उन्हें पता चला the hymn book, वो जो गाने की किताब थी, even like this Bible also, they did like that. और बाइबल को भी उन्होंने उसी तरह से पकड़ा। He found out like this later, बाद में जब बातचीत के वक्त उन्हें पता चला because there is not much hymn book or Bible with them.
कि उनके पास उतने गाने की किताब और उतने बाइबल नहीं है। So when they come to church, जब वो कलीसिया आते हैं so they are helping each other. तो एक दूसरे को दिखाते हैं, मदद करते The हैं। person who doesn't have Bible, तो जिनके पास बाइबल नहीं है reading the word. और वे वचन ऐसे पढ़ते हैं। Because remember that time it is a very tough time. आप ध्यान में रखिए कि उस समय बहुत कठिन था It's in 1940s. और 1940 की सदी में, Communism was very strong in these places. और इस जगह पर साम्यवाद बहुत ही प्रभावशील था। You know that there is a desire for the word. तो उस वचन के लिए जैसे एक चाह थी। What amazing! कितना अद्भुत है। We have the Bible. हमारे पास आज बाइबल है। We have the Bible in my phone, Bible in like many versions. Bible maybe in our own houses. हमारे घर में अलग अलग वर्जन की बाइबल है, मेरे मोबाइल में बाइबल है। सोचिए इसके You बारे see में। that? आप देखिए, God says, take this. और परमेश्वर कहता है इसे लो, This is the food और ये खाना है on the journey. इस सफर के लिए। I need water too. मुझे पानी की भी जरूरत है। Why, like the people of Israel cried out. और इजराइल के लोग रोए। Of course, they are coming. They are traveling through wilderness. हाँ, वो रेगिस्तान से गुजर रहे थे। Nobody ever traveled like this. और किसी ने भी इस तरह से सफर नहीं किया If you होगा। look at the map, अगर आप उस नक्शे को देखो तो from people of Israel come out of Egypt. जब मिस्र से इजराइल लोग बाहर आ गए They थे, were in a very easy route बहुत ही आसान सा रास्ता था from the Philistines' land. फिलिस्तीन के देश से। But God brought them in a totally opposite direction. लेकिन परमेश्वर ने उनको बिल्कुल ही अलग दिशा से लेके गया। Land filled with scorpions and snakes. There's lack of water. और ऐसी जगह से जहाँ पे सांप है, बिच्छू है, पानी की कमी है। But God wants to do that. परमेश्वर ऐसे करना चाहता है। Because how will I know manna? कैसे मुझे पता चलेगा मन्ना के बारे में? How will I drink the water from the rock? और कैसे मैं वो पत्थर से पानी पीऊंगा? Which was a picture of Christ. जो यीशु मसीह का चित्रण था। We have Christ. हमारे पास मसीह है। Isaiah chapter 55. यशायाह 55। This is what this verse says. और ये वचन ऐसे कहता है, Oh, everyone who thirst, और जो कोई प्यासा है come to me, मेरे पास आओ, drink, पियो, and come, buy and eat. और आओ और खरीदी करके खाओ, Without money, without price. और बिना किसी कीमत के। Wow, what an invitation, isn't it? और कितना अच्छी बुलाहट है। It's free और जैसे मुफ्त में है। in the wilderness. इस रेगिस्तान में, In this journey, I need this. और इस सफर में मुझे इसकी जरूरत है। We have a call. God has called us. और परमेश्वर ने हमें एक बुलाहट दी है, जो परमेश्वर ने बुलाया है। You see, you and I living in time. और हम ऐसे समय में जी रहे We हैं। are living in time. हम इस समय में जी रहे हैं। We may live for 70 years or 80 years. हम 70 या 80 साल तक जिएंगे। But after that, what? उसके बाद क्या? Mark Twain said. मार्क ट्वेन करके व्यक्ति ने कहा, He said the important day for a man is, और सबसे महत्वपूर्ण दिन एक मनुष्य के लिए है the तो greatest day for the man is सबसे बड़ा दिन the day he born. जिस दिन उसका जन्म हुआ, And the second day, और दूसरा दिन the day he know why he born. और जिस दिन उसे पता चलता है क्यों वो जन्मा। What is the purpose of my life? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? Why am I here? मैं क्यों यहाँ पर हूँ? Is to fulfill my own desires and ambitions? क्या मेरी खुद की इच्छाओं को, आत्मकांक्षाओं को पूरे करने के लिए? What is the like a purpose? इसका उद्देश्य क्या है? No, we are going home. नहीं, हम घर जा रहे हैं। We have a purpose in a call of God in our heart. और हमारे हृदय में परमेश्वर की एक बुलाहट है। Yes, I'm living in time. 2020 I am. और हम 2020 में इस समय में जी रहे हैं। Right? If God permits, maybe we'll see 2030. अगर परमेश्वर की इच्छा है तो 2030 भी हम देख पाएंगे। Some of us. हम में से कुछ। Is God knows that. परमेश्वर इसे जानता है। But लेकिन important thing is महत्वपूर्ण बात ये है, what lies in eternity. अनंत में क्या रखा है। Like guys, look at these workers or these people are traveling to their home. जब मैं इन मजदूरों को देखता हूँ जो अपने घर वापस जा रहे हैं, They have only one intention. और उनके पास एक ही उद्देश्य है, I need to reach home. मुझे घर पहुँचना है। It doesn't matter. फर्क नहीं पड़ता I'm walking, I'm in this crowded truck. मैं चल रहा हूँ या फिर इस भीड़ में ट्रक में हूँ, I need to reach home. मुझे घर पहुँचना है।
In there, everything is okay. वहां पे सब ठीक ठाक है। In our life, हमारे जीवन में as we living in this time, हम जब इस समय में जी रहे हैं, understand you have a call in your life. ये ध्यान में रखिएगा, समझिएगा कि आपके जीवन में एक बुलाहट है। You are not for yourself here. आप अपने खुद के लिए नहीं हो इस You दुनिया are an में, individual. आप एक व्यक्ति हो। Like the Latin word is called you are an indivisible. मतलब लैटिन शब्द में जो शब्द है इंडिविजिबल, मतलब आपको कम नहीं किया जा You सकता। are human being, आप एक मनुष्य हो, not human doing. ये Like- आप मनुष्य करने वाले नहीं हो, You are a person. एक व्यक्ति हो, Unique. God has created you. और बहुत ही अलग परमेश्वर ने आपको बनाया है। His signature on our souls. और हमारे प्राणों पर उसकी जैसे सिग्नेचर है, We have a call. उसकी बुलाहट, We have a call of God in our lives. हमारे जीवन में उसकी बुलाहट। This is an amazing, isn't it? और ये अद्भुत है, We have a call in our lives. हमारे जीवन में एक बुलाहट है। Yes, we do work in our lives. हाँ, हम हमारे जीवन में काम करते हैं, We have a different responsibility, हमारी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, but लेकिन there is a call of God परमेश्वर की एक बुलाहट है in our life. हमारे जीवन में। Never forget that. उसे कभी ना भूलिए। Like you have a call. I have a call. आपके जीवन में, मेरे जीवन में एक बुलाहट है, Unless I fulfill that call, और जब तक मैं उस बुलाहट को पूरा नहीं करता, I'll never find that true satisfaction. तो मुझे वो सच्ची संतुष्टि नहीं मिलेगी। Like a call to a church, और एक कलीसिया की तरफ आपको बुलाया गया है, call to win the lost. और इन खोए हुओं को जीतने की बुलाहट है। Like you may not be called to like a Billy Graham, आपको शायद बिली ग्राहम की बुलाहट नहीं होगी, but we are all called. लेकिन हमें सबके जीवन में एक बुलाहट है। One difference we can make. एक फर्क हम कर सकते हैं। Like many times the problem with us, कई बार हमारे साथ ये तकलीफ हो जाती we come है, to this point that I can't do this. हम इस जगह पर पहुंच जाते हैं, हम कहते हैं मैं नहीं कर सकता, This is a big task बहुत ही कठिन काम है concerning the call of God. परमेश्वर की बुलाहट को लेकर, How can I share this? और मैं कैसे दूसरों के साथ बांटूं, How can I share this gospel with an unbeliever? एक अविश्वासी के साथ मैं कैसे सुसमाचार बताऊं। I want to say one story regarding Ravi Zachariah. रवि ज़करिया की एक कहानी मैं आपको बताऊंगा। He was committed, I told you, trying to commit suicide. और जैसे उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, In जैसे the hospital he was. और जब वो अस्पताल में थे, One of his friend came. उनका एक दोस्तों में से एक आया, He's a foreigner और वो From US. अमेरिका से थे, and he came to visit. और वो मिलने आए, And his name was Fred Davis. और उनका नाम फ्रेड डेविस था, He brought a Gospel of John और उन्होंने यूहन्ना का सुसमाचार लेकर आए and he started reading. और पढ़ने लगे। John chapter 14 verse 19. और यूहन्ना 14:19, Because I live, क्योंकि मैं जीवित हूँ you also live. This is Jesus' तुम- words. तुम भी जियोगे, ये यीशु मसीह के शब्द थे। You know that word changed Ravi Zachariah's life. और उन शब्दों ने रवि ज़करिया का जीवन बदल दिया। What did Fred David did? फ्रेड डेविड ने क्या किया? फ्रेड डेविस ने Just brought one Bible. सिर्फ बाइबल लेकर आए। Ravi Zachariah was saying, रवि ज़करिया कह रहे हैं, like the Fred Davis was dying. जब फ्रेड डेविस मर रहे थे, He called Ravi Zachariah. उन्होंने रवि ज़करिया को फोन किया। He said, उन्होंने कहा, Ravi, रवि, maybe God sent me on this planet Earth to give that Bible to you. शायद इस दुनिया में परमेश्वर ने मुझे इसीलिए भेजा कि मैं उस बाइबल को तुम्हें दे पाऊं। Wow, isn't it amazing? क्या ये अद्भुत नहीं? You and I can't imagine how God can use through you and me. हम सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर आपके और मेरे द्वारा किस चीज के लिए वो इस्तेमाल कर सकता है, We can't underestimate. और हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, कम नहीं समझ सकते। God can use us. परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा, Don't limit Him. और उसको आप कम मत जानिए। He will use you and He will mightily glorify Himself. उसको रोकिए मत, वो आपको इस्तेमाल करेगा और अद्भुत तरीके से आपको काम में लाएगा। Don't underestimate what God can do और through you. परमेश्वर आपके द्वारा जो काम कर सकता है उसे कम ना समझिए। I shared in the class too. क्लास में भी मैंने बताया, And Billy Graham was questioned by a journalist. और बिली ग्राहम को एक पत्रकार ने उनके सवाल पूछा, Billy, there are many efficient preachers are here, but why God used you?
इतने सारे अच्छे अच्छे प्रचारक है बिली, परमेश्वर ने तुम्हारा ही क्यों इस्तेमाल किया? Billy Graham said, बिली ग्राहम ने कहा, when I get to heaven, जब मैं स्वर्ग में पहुंचने this वाला is हूँ, my first question to God. मैं परमेश्वर से पहला सवाल यही पूछने वाला हूँ Why you use me? कि मुझे क्यों इस्तेमाल किया? Simple man. मैं तो साधारण व्यक्ति, Like how God used him. परमेश्वर ने कैसे उनका इस्तेमाल Can किया? anyone imagine that? क्या कोई अपने सोच से सोच सकता है? Anyone imagine that? Rabbi Zachariah, this last 48 years, God used him whole worldwide. और पूरी दुनिया में पिछले 48 साल तक रवि ज़करिया का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। Because understand the call of God. जब परमेश्वर की बुलाहट को हम समझते हैं। I remember I went to came to Navi Mumbai. और मुझे याद है जब हम पहली बार नवी मुंबई में आया। And then I believe in 2012 I went to overseas conference. और 2012 में मैं बाहर अपने देश के बाहर एक कॉन्फ्रेंस में गया। In Budapest, Europe, Hungary. हंगेरी में। Myself and Richard Robari was there. और मैं और रिचर्ड रोबारियो थे। And one thing you have to do that before you go, you have to change the currencies. और वहाँ जाने से पहले आपको जो अपने पैसे हैं वो उधर की करेंसी से बदलने पड़ते हैं। You have to change the Indian currency and take the euro currencies. आपको रुपयों को यूरो में बदलना पड़ता है। Because Indian currency you can't use there. क्योंकि भारत के रुपए हम वहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। No matter how many Gandhiji's pictures is there, you can't use there. फर्क नहीं पड़ता कि कितने गांधी जी के फोटो आपके पास है, आप उसको वहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। You have to change the currency. आपको वो करेंसी बदलनी पड़ती है। In this journey, और इस सफर में to heaven, to our home, हमारे स्वर्ग, हमारे घर में we need to change the currency. हमें भी ये करेंसी बदलनी पड़ती है। In this time, इस समय में God has given you. आपको जो समय दिया है परमेश्वर Change ने, it. आप बदल लीजिए। Change those currencies. उन करेंसियों को आप बदल लीजिए। Change the time और समय को बदलिए to make an eternal impact. जिससे अनंत के लिए प्रभावित होगा। You may say, okay, this is another Sunday morning, आप कहोगे और एक इतवार की सभा है, or maybe another Monday morning. और एक मंगल सोमवार आ गया। I'm not just saying the putting the offering. और मैं सिर्फ भेंट डालने के बारे में नहीं I'm कहता हूँ, saying much bigger than that. उससे भी बढ़कर चीजों को मैं कह रहा हूँ। Can you change that? क्या आप उसे बदल सकते हो? Can you change that currency of your time क्या आप अपने समय की जो करेंसी है उसे बदल सकते हो? to make gold, silver, precious stones? और जिसे आप सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों को बदल सकते हो उसमें? Or my time is changed into wood, hay, stubble? या फिर मेरा समय मैं लकड़ी और घास फूस और रद्दे में बदलूं? This is in 1 Corinthians chapter 3. और पहला कुरिन्थियों 3 में लिखा है, All our works has to be revealed at His presence. और उसकी समक्षता में हमारे सारे कामों को प्रकट किया जाएगा। How we done? हमने कैसे किया? Wood, hay, stubble, या लकड़ी, या फिर घास फूस, रद्दा, or gold, silver, precious stones? या फिर सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर, कीमती पत्थर। Change the time. इस समय को आप बदलिए You can change it और आप इसे परिवर्तित कर सकते हो by in the call of God. इस परमेश्वर की बुलाहट में। Maybe conversations can be turned into a gold in eternity. और अनंत में हमारी जो बातचीत है उसे हम जैसे सोने में बदल सकते हैं। James chapter 5, the last verse says, और याकूब 5 का आखिरी वचन कहता है, He who turns the person from sin, he is covers multitudes of sins. और जो व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को पाप से पलट देता है, पाप से दूर लेके जाता है, वो बहुत सारे पापों को ढांप देता है। You see that? क्या आप देखते हो इसे? Like taking a one Bible into that hospital. और एक बाइबल को उस अस्पताल में लेके जाना। That man on that bed is going to be receive that Bible. और उस जो बेड पे पड़ा हुआ व्यक्ति वो उस बाइबल को ग्रहण करेगा। Then in God's a time that man will go to Canada and become a man of a preacher. और समय में परमेश्वर के समय में वो व्यक्ति कनाडा जाके परमेश्वर का एक व्यक्ति बनेगा। You knew that. किसको पता था?
God can do that. परमेश्वर कर सकता है. Never underestimate कभी भी कम नहीं समझिए what God can do to you, through you. जो परमेश्वर आपके द्वारा कर सकता You है. say that money issue. आप कहोगे पैसों की तकलीफ है. God says that those logistical things I will take care. परमेश्वर कहता है कि उन चीजों का मैं संभाल लूंगा. Billy Graham was just starting up. He's like as a preaching. और बिली ग्राहम अपनी सेवकाई, प्रचार की सेवकाई शुरू ही कर रहे थे. And he was not up to that, like people don't know him much that time. लोग उनको इतना जानते नहीं थे उस वक्त. There was a famous preacher. तभी वो दूसरे एक जाने माने प्रचारक He's थे. founder of the Youth for Christ. वो यूथ फॉर क्राइस्ट के लिए काम And करते he had a meeting. और उनकी एक सभा थी. And but some unfortunate thing happened because he could not go. और ऐसी कुछ चीजें हो गई उनके जीवन में कि वो नहीं जा पाए. And he asked Billy Graham, "Can you go?" और उन्होंने बिली ग्राहम से पूछा, क्या तुम जाओगे? And he said, "I will go." उन्होंने कहा, हाँ मैं जाऊंगा. And this man called those organizers. और जिन्होंने ये सब सभा की शुरुआत की थी उनको उन्होंने फोन किया. "Oh, I can't come, मैं नहीं आ पा रहा but हूँ. there is a great evangelist, लेकिन एक बहुत ही अच्छे प्रचारक हैं. Billy Graham." उनका नाम बिली ग्राहम They है. said, "We never heard about it. उन्होंने कहा, हमने कभी सुना नहीं. If you are not coming, we are canceling the meeting." अगर तुम नहीं आ रहे हो तो सभा को हम रद्द कर देते हैं. They said, "No." He said, "No, you listen to him. लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, आप सुनो उनको You will never regret." और आप कभी बुरा नहीं मानोगे. They reluctantly took. उनकी इच्छा नहीं थी लेकिन उन्होंने होने दी सभा. Billy Graham went and preached. बिली ग्राहम गए, उन्होंने प्रचार किया. And after coming back, that man asked, "How was the meeting?" और वापस आने के बाद उन व्यक्ति ने पूछा कि कैसी थी सभाएं. And the Billy Graham said, "Yeah, it was okay. Only one person believed in Jesus." बिली ग्राहम ने कहा, हाँ ठीक था, सिर्फ एक ही व्यक्ति ने यीशु मसीह पर विश्वास किया. And that man asked, "Did you note down the name तो उन्होंने पूछा, क्या तुमने उसका नाम लिखा so that we can pray?" कि हम उनके लिए प्रार्थना करें? And he said, "Yes." तो उन्होंने कहा, हाँ. His name was Warren Wisby. और उनका नाम था वॉरेन विस्बी. What I have his book, Warren Wisby. और वॉरेन विस्बी की किताब मेरे पास है. What a fine theologian. और बहुत ही अच्छे बाइबल के He शिक्षक was the pastor of the Moody Bible Church. और मूडी बाइबल चर्च के पास्टर रहे. What God can do through us? How God can do through us? और क्या परमेश्वर हमारे द्वारा कर सकता है, कैसे कर सकता है? He can do it. वो कर सकता है. You have a call. आपके जीवन में एक बुलाहट है. You may say, "I am a housewife." आप कहोगे कि मैं तो सिर्फ गृहिणी हूँ. You can mentor somebody. आप किसी को शिक्षा दे सकते हो. Some young couple, young ladies, young teenage people. और कुछ नवयुवक जो जिनकी अभी भी शादी हुई है और या फिर टीनेजर्स को. Change the currency. और अपनी इस करेंसी को बदलिए. Don't think that, okay, I am going to store everything here in my time. I will do it at the end. और ऐसा मत सोचिए कि इस समय में मैं सारी चीजों को इकट्ठा करता हूँ और फिर जब समय आएगा तभी मैं उनको इस्तेमाल करूंगा. No, time will be too late. लेकिन तब तक समय बहुत देर हो जाएगी. Do it now. अभी कीजिए. That's what Paul says in 2 Corinthians. He says that this is the time of your salvation. इसलिए दूसरे कुरिन्थियों में पौलुस कहता है कि अभी तुम्हारे उद्धार का समय है. Use it now. अभी इसका इस्तेमाल कीजिए. Maybe take a phone call and call somebody. या फिर फोन लीजिए, किसी को बुलाइए. What you're doing it. और आप जो कर रहे हो, Your ordinary time. आपके जो साधारण से समय को, You are making an impact in eternity. आप अनंत में उसको प्रभाव डाल रहे हो. Gold, सोना, silver, चांदी precious stone. और बहुमूल्य पत्थर. Wow, that's amazing. और ये अद्भुत है. When we reach home, जब हम घर पहुंचेंगे we say, "Wow, this is real." और आप कहोगे कि ये सच था. That's what the First Peter chapter 1 talks about. पहला पत्र से किसी की बात करता I है just read it and close it. और हम इसे पढ़ेंगे और खत्म करेंगे. And this is an amazing chapter, so promise God has what God has given to us. और ये एक ऐसा अध्याय है परमेश्वर के अद्भुत वायदों का जो परमेश्वर ने हमें दी है. Verse 3. पहला पत्र से 1:3. Blessed be God and Father of Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर
और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, to an inheritance incorruptible, undefiled, that does not fade away, reserved in heaven for you. अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। In this journey we will have troubles. इस सफर में हमें परेशानियां होंगी, Enemy will come against us. और शत्रु हमारे विरोध में आएगा। Remember when people of Israel was passing through, और सोचिएगा जब इजराइल के लोग उन जगहों से गुजर रहे थे they came to the place called Midian. और मिद्यान करके जगह पर जब वो आए, This king was very powerful. और वहाँ का राजा बहुत ही सामर्थी था, But instead of going and attacking them, और जाकर उनके ऊपर लड़ाई करने से पहले बजाय he did one of the like a deceitful way. और उन्होंने बहुत ही जैसे फंसाने वाली चीज की, He called one of the prophet और उन्होंने एक नबी को बुलाया and took him to the top of the mountain. और पहाड़ के ऊपर चोटी पर लेके गया, And he said, see those people? और उसने उन लोगों को दिखाया, देखो ये लोग, They are the Israeli people. ये इजराइल के लोग हैं, Curse these people. उनको शाप दो, Curse them. उनको शाप दो। You read it in Numbers chapter 23 and 24. और गिनती 23 और 24 में हम पढ़ते हैं, What a story. What a like a blessing. You read that verses. और उन वचनों को पढ़िए, Instead of curse, और उन शाप की बजाय it was blessing. आशीष थी। What a story that. और कैसी अद्भुत कहानी है वो। 4 places. This king took him 4 different places. और इस राजा ने उस व्यक्ति को 4 अलग-अलग जगह पर लेकर गया। Okay, look the outer skirts of the Israeli people. तो इजराइल की जो बाहर की सीमा को, बाहर की रेशा को देखो, Look at that tent from another place. और दूसरी जगह से उनके तंबुओं को देखो, Different places. Look, अलग-अलग जगह से देखो, curse these people. और इनको शापित करो। God says, परमेश्वर कहता है, how can I curse मैं कैसे शापित कर सकता whom हूँ I have blessed? जिनको मैंने आशीष दी I can है? find any sin. मैं उनमें कुछ पाप देखता ही नहीं। In our journey, हमारे सफर में we face this. हम इसका सामना करेंगे, People will come against us. लोग हमारे विरोध में खड़े होंगे, Your office people will come against you. आपके ऑफिस के लोग आपके विरोध में खड़े होंगे, Maybe a person's household will be his own enemy. और अब उसके घर के, खुद के घर के लोग उसके विरोध में खड़े होंगे, शत्रु होंगे। Micah chapter 5. मीका 5 में जैसे लिखा है, But लेकिन we are heading home. हम घर जा रहे हैं, We are heading home. और हम घर की ओर हैं, And he is with us. और वो हमारे साथ है। We take the food. उस खाने को लीजिए, We drink the water from Christ. और यीशु मसीह से उस पानी को पीजिए, Filled with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से भरिए। They're also using the opportunities. और हम इस मौकों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, Changing the currencies. और इस मुद्रा को जैसे हम बदल रहे हैं। Don't be just a Sunday Christian. सिर्फ इतवार के मसीही मत बनिए, God wants to use you. परमेश्वर आपका इस्तेमाल कराना चाहता है। God is not asking you to quit your job and like serve Him. और परमेश्वर ऐसे नहीं कहता है कि अपनी नौकरियों को छोड़ो और उसकी सेवा करो। God is asking परमेश्वर कहता the है job which God has given you, जो नौकरी परमेश्वर ने आपको दी है, or the place where you are, और जो इस जगह पर परमेश्वर ने आपको रखा है, or the family in which you are, और जिस परिवार में परमेश्वर ने आपको रखा है, serve it. उनको सेवा कीजिए, Serve it उसको सेवा कीजिए in that call of God, इस परमेश्वर की बुलाहट में, because that's what we are. और इसीलिए हमें बनाया है। In your soul, आपके प्राण में there's that signature. God's signature is in your soul. परमेश्वर की वो स्याही से वो उसके खुद के नाम का सही है। You are not your own. आप अपने खुद के नहीं हैं, It belongs to God. आप परमेश्वर के हो, It belongs to God. तो आप परमेश्वर के हो, You are on a journey. और आप उस सफर में हो। And at the end, और आखिर में and as Peter says, पतरस जो कहता है, we have an inheritance, हमारे पास एक मिरास है undefiled. जो कभी नष्ट नहीं, निर्मल है, Like, yeah, incorruptible. जो निर्मल है, It cannot be corrupt. वो कभी खराब नहीं हो सकता। God is an incorruptible God in Romans 1:23. और परमेश्वर, रोमियो 1:23 में लिखा है कि वो एक पवित्र परमेश्वर है।
undefiled, उसमें कोई खोट नहीं है does not fade away. और जो कभी पुराना नहीं होता है। The last verse of verse 5, 1 Peter 1, और पहला पत्रस 5 में who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। You may say that, what if I don't reach home? अब सोचोगे, कहोगे अगर मैं घर नहीं पहुंचा तो? Don't worry, you will reach. परेशान मत होइए, आप पहुंचोगे जरूर। It is kept by the power of God. और वो परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा सुरक्षित की It is गई है, kept. सुरक्षित की गई है। It's like the same word like we use this city is under the watch or the kept under the guard of police or the military. और जैसे एक तरह से हम कहते हैं ना कि ये शहर पुलिसों की निगरानी में है। That inheritance is kept by the power of God. तो वो मिरास भी परमेश्वर की निगरानी के द्वारा रखी गई है, सुरक्षित। It doesn't depend on you, ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, it's on Him. वो उसके ऊपर निर्भर है, It depends on God. वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। Amazing. ये अद्भुत है। Let's believe God. आइए परमेश्वर पर विश्वास करें। Let's say this morning, आइए सुबह ऐसे कहें, Lord, I want to change the time, और मैं इस समय को परमेश्वर बदलना चाहता हूँ, like to in eternity perspective. अनंत के दृष्टिकोण में Maybe doing something छोटी चीज शायद करना which can make an eternal impact. जो अनंत में उसका प्रभाव ला सकती है। What people can say. लोग क्या कहेंगे? People will say this is a 2 mites. और लोग कहेंगे 2 सिक्के, People will say 2 bread, 5 bread, 2 fish. और लोग कहेंगे 5 रोटी 2 मछलियां। God says, परमेश्वर कहता है I'll use it. मैं इसका इस्तेमाल I'll करूंगा remember it. और मैं इसे याद Maybe रखूंगा। some people say it's a waste. What the waste of your life? और कुछ लोग कहेंगे अपने जीवन को ऐसे ही खर्चा कर दिया। Like that Mary broke the alabaster flask of that fragrant. और मरियम ने जो अल्बास्टर की जो कुपी है उसको तोड़ी। People said, लोगों even the ने कहा, disciples said, और उनके शिष्यों ने कहा it's a waste. ये तो व्यर्थ गए। Why this waste? ऐसी व्यर्थ क्यों किया? Jesus said, परमेश्वर ने कहा she did it for my body. उसने मेरे देह के लिए किया है, It will be remembered ये याद रखा जाएगा throughout the generations wherever this gospel is preached. हर जाति के लिए, हर सदी के लिए जहाँ पर ये सुसमाचार का प्रचार होगा। If Hebrews 6:10 says, friend, इब्रू 6:10 कहता है मेरे दोस्तों He's not an unjust God कि वो एक ऐसा अन्यायी to परमेश्वर नहीं forget है your work, जो आपके कामों को भूल जाएगा, labor of love. और जो प्रेम का जो आपने सेवा की He will reward you. वो उसका प्रतिफल जरूर He देगा। didn't forget those places from the Israeli people came out. और उन जगहों को परमेश्वर नहीं भूला जहाँ से इजराइल के लोग गुजरे थे। It's a loving nature of God. ये परमेश्वर का प्रेमी स्वभाव है। Every areas of their life, हर एक जीवन, उनके जीवन के हर एक हिस्से से He went before them. वो उनके पहले गया He was afflicted और वो परेशान हुआ because that is His nature. क्योंकि वो उसका स्वभाव He never leaves us. वो कभी हमें छोड़ता नहीं It's है। better it's amazing to trust this God. और ये अद्भुत है इस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना Walk with them. और उसके साथ चलना। Amen. आमीन। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you. पिता हम धन्यवाद करते हैं Thank you, Lord, you are using us. और धन्यवाद करते हैं कि आप हमारा इस्तेमाल करते हो, Knowing that we are unfaithful, ये जानते हुए कि हम कितने अविश्वासी हैं, still you use us. फिर भी आप हमारा इस्तेमाल करते हो। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। Father, we pray today. पिता हम प्रार्थना करते हैं आज, Help us to live in a way where we can honor you. और हमें इस तरह से जीने के लिए मदद कीजिए कि हम आपका आदर कर सके। Lord, our prayer is not some another religious prayer, और हमारी प्रार्थना ऐसी दूसरी धार्मिक विधि के जैसे नहीं, but it is honoring you. लेकिन आपके आदर के लिए But परमेश्वर। Lord, our reading of the word is not another reading. और हमारे आपके वचन को पढ़ना हमारा एक दूसरे को ही पढ़ने के बुक किताब के जैसे नहीं, But hearing from you, Lord. लेकिन आपसे सुनने के लिए। Lord,
Lord, help us. हमें मदद कीजिए परमेश्वर, Help us to change our currencies, Lord. और हमारी मुद्राओं को बदलने के लिए हमें मदद कीजिए। Taking every opportunity, turn it to and make an impact in eternity, Lord. और हर एक मौके को लेकर परमेश्वर हम उसे अनंत में बदल दें। In this journey, we have many dangers, और इस सफर में बहुत सारे खतरे हैं the परमेश्वर, disappointment. निराशाएं हैं, But Lord, we know one thing: लेकिन एक चीज हम you are जानते हैं, there with us. आप हमारे साथ हो। Maybe we like a prodigal son, शायद हम उड़ाऊ पुत्र के जैसे हैं, but at the end, he came to himself. लेकिन आखिर में वो अपने आपे में आया He said, I am going back home. और उसने कहा कि मैं घर वापस जा रहा हूँ। Oh Lord, we come into you. हे परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, Lord, all other places is like a sinking sand. और दूसरी जगह परमेश्वर हम फंसे जाते हैं, धंसे जाते हैं, But Jesus is the rock लेकिन यीशु मसीह वो पत्थर है where we can stand firmly, जहाँ पर हम खड़े हो सकते हैं, where our life can find ultimate satisfaction. जहाँ पर हमारे जीवन को जो सच्ची संतुष्टि मिल सकती At है। this point of time, इस क्षण में you are a believer. आप विश्वासी हैं, Or you say that commit yourself to God. Commit yourself to God और अपने आप को परमेश्वर को सौंप दीजिए, in a way where you say to God, Lord, I want to glorify you. और एक तरीके से जैसे आप परमेश्वर को कह रहे हो कि परमेश्वर मैं आपको महिमा देना चाहता हूँ, But I have many other duties. मेरे पास बहुत सारे दूसरे काम हैं I'm a housewife, और जिम्मेदारियां or हैं, I'm a working man. मैं गृहिणी हूँ, मैं और काम करने वाला मनुष्य I हूँ, have children. मेरे बच्चे हैं, I have parents. मेरे माता पिता I have हैं, different things to take care. और मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियों को संभालना But है। I want to do, Lord, one more thing, लेकिन एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ which you are परमेश्वर, putting it into my heart. जो मेरे हृदय में आप डाल रहे हो। Lord, when you tell a person to do a work, जब आप किसी व्यक्ति को कहते हो कि ये काम करो, you also equip that person. आप उसको उस काम के लिए तैयार भी We करते pray, हो। Lord, today. आज हम प्रार्थना करते हैं Lord, परमेश्वर, use, Lord. हमें इस्तेमाल कीजिए Use us, परमेश्वर, Lord, हमें इस्तेमाल in a कीजिए mighty way, बहुत अद्भुत in तरीके a से, totally different way. बहुत ही अलग तरीके से। Maybe writing a letter to somebody, शायद किसी को खत लिखना, or maybe calling somebody. या किसी को फोन करना, Maybe after the lockdown, visiting somebody, लॉकडाउन के बाद या जाकर किसी को मिलना, or like maybe a missionary, या फिर एक मिशनरी को, or or doing a Bible college class. और या फिर बाइबल कॉलेज का एक क्लास करना। Help us, Lord, हमें मदद कीजिए परमेश्वर, to change our currencies हमारी मुद्राओं को हम बदल सके, to gold, silver, precious stones. सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों में। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। At this point, if anyone is hearing this message for the first time, अगर इस क्षण में कोई व्यक्ति है जो इस संदेश को पहली बार सुन रहा है, never received Jesus as your personal savior, आपने कभी यीशु मसीह का अपने व्यक्तिगत उद्धारक के रूप में स्वीकार नहीं किया है, He's a rock. वो पत्थर है। He said, I am the living, I can give that person who believe me living water. और उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता हूँ उसे मैं वो जीवन का जल दूंगा, He can satisfy you. वो आपको संतुष्ट करेगा। Believe in Him. उस पर विश्वास करो। Say this simple prayer. इस साधारण सी प्रार्थना को आप कर Jesus, come into सकते my हैं। heart. यीशु मेरे हृदय में आओ, I'm a sinner. मैं पापी हूँ, I need you. मुझे आपकी जरूरत Give है, me your peace, Lord. मुझे आपकी शांति दीजिए, Give me your eternal life, Lord. मुझे आपका अनंत जीवन दीजिए, I need forgiveness. मुझे क्षमा की जरूरत है। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर, Worship you. हम क्या आपकी आराधना करते हैं। If you did this prayer, अगर आपने इस प्रार्थना को किया है, Bible says that you are a child of God. बाइबल ये कहती है कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं, Your sins are forgiven. आपके पाप क्षमा हो चुके हैं। You can contact us. आप हमें बुला सकते हो, You can contact us or write to us आप हमें बुला सकते हो या फिर हमें लिख सकते हो, so that we can give you with the further materials और कुछ साहित्य हम आपको दे सकते हैं, or also help you in your spiritual walk with God. और आपके परमेश्वर के साथ चलने में, इस आत्मिक जीवन में भी हम आपको मदद कर सकते हैं। Thank you. धन्यवाद। Thank you for connecting with us. धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। God bless. परमेश्वर आपको आशीष दे। As we end this service, let us sing this song. He is love, He is holy, He cares supremely that all men might see. He is gentle, He is tender-hearted, He is risen Savior, He is our God. Let's sing.
I can see that you love Jesus first. It's plain to me, and that you sit close and hear His heartbeat. For in your eyes I see shining love that speaks so clear, and I can hear them sing so sweetly. He is lovely, He is holy, He gives supremely that all men might see, and He is gentle, tender-hearted, gracious Savior. He is God, Master Maker, Master Maker, Life Creator, come and dwell in me, that my heart may know your tender mercy. Shine through me that all may see your love, so full and free, and I'll declare your praise to endless ages. You are lovely, you are holy, you give supremely that all men might see, and you are tender-hearted, risen Savior. You are God, you are lovely, you are holy, you give supremely that all men might see. You're gentle, you are gentle, tender-hearted, risen Savior. You are God. You're so lovely, holy, holy. You care supremely that all men might see. Lord, you're so gentle, you're tender-hearted, risen Savior. You are God, you are God, you are God, Lord of this nation, Lord of this earth. You are God, you are God, you are God. Lord, we worship you, Lord. See you all next Sunday. God bless you all.